پریز دا لارڈ عزیزو، آج 9 اپریل 2026 شام کی عبادت میں جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ سے آپ سب کو سلام عرض کرتا اور خدا یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم دور اور نزدیک سے جمع ہو کر کے اپنے زندہ یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کا جلال دے سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آج میرے ساتھ آپ نکالیے پہلا کرنتھیوں، اس کا پہلا ہی باب ہے اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر عزیزو 19ویں آیات مقدسہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ کلام پاک میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا باپ یسوع مسیح کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کلام پاک کا پڑھا جانا عزیزو ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج کا ٹاپک ہے دا میسج آف کراس۔ عزیزو میں اس کو انگلش لینگویج میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of Christ God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. This is the voice of the Lord, word of the Lord, and the people of the Lord may say with me, Thank you, Lord Jesus Christ, for your words. Amen. Amen. Hallelujah. The message of cross, صلیب کا پیغام۔ عزیزو صلیب کا جو پیغام ہے یہ ہے نجات کا پیغام، the message of salvation۔ اگر ہم سیلویشن کے میسج کو سمجھ جائیں تو وہ صلیب جس کو بظاہر کوئی بھی نشان نہیں ہے عزیزو، کسی بھی نشان سے ایماندار کو منع کیا گیا ہے۔ ایماندار عزیزو اس میسج کو لیتا ہے، نہ کہ اس نشان کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے۔ ہر قسم کا ظاہری نشان سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے کپڑوں پر بنوانا، اپنی جلد پر یعنی اپنے جسم کے کسی حصے پر ٹیٹو بنوانا، بالیاں پہننا صلیب کی، یا ٹیٹو بنوانا، کھدوانا، لکڑی کی صلیبیں بنانا، پتھر کی صلیبیں بنانا، یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ عزیزو جب آتشی سانپوں نے کاٹنا شروع کیا بیابان کے اندر تو بنی اسرائیل مرنے لگے، تو مقدس موسیٰ سے خداوند ہم کلام ہوئے اور ان سے کہا کہ تو ایک پیتل کا سانپ بنا اور اس کو ایک بلی پر، لکڑی کی بلی پر اس کو لٹکا دے، اور جو بھی سانپ کا ڈسا ہوا اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ عزیزو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا جو دیوتا تھا
उसकी शक्ल सांप जैसी थी, ब्राउन सांप। इसको आतिशी सांप भी कहा, ब्रॉन्ज यानी पीतल का सांप भी कहा गया है। और वो जो बुतप्रस्त बादशाह था उसका ये निशान था। लेकिन चूंकि खुदा का बंदा मूसा, उसको बुलाहट हुई तो उसको बुलाया गया। अब पाक रूह के वसीले से जब तक मसीह ने कुर्बानी नहीं देनी थी सलीब पर, उस वक्त तक अजीजों इस बात को निशान के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। और इसका जिक्र आप यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला 33वां बाब में पढ़ सकते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे पर लटकाया, इसी तरह से इब्ने आदम वो भी लटकाया जाएगा। गोया अंबिया ने जो कुछ कहा, जो कुछ बोला, जो कुछ उनको कहा गया, वो मसीह ने भी इसी तरह से ही सलीब का दुख उठाया। और उस वक्त भी जो कोई भी ढस्सा हुआ आतिशी सांपों का, वो उसको देखता था, वो बच जाता था। अजीजों, आदम और हवा को भी सांप ने ढसा। कोई सांप नहीं था वहां पर, बल्कि बोला सांप, और बोलने से उन्होंने उसकी बात को माना। और जो कुछ खुदा बाप ने, जो अजली और अब्दी है यीशु मसीह, उसकी बात को इग्नोर कर दिया। और जब इग्नोर किया तो फिर अदन से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि खुदा बाप यीशु मसीह की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। आपने देखा, यूहन्ना रसूल लिखते हैं, पहले लिखा है कि क्योंकि खुदा बाप यीशु मसीह ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने आप को फिदिया में कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसको मिनी बाइबल भी कहा जाता है, और मिनी बाइबल है, छोटी बाइबल है। बस एक इससे आयत को ले लो और कह दो कि मैंने चूंकि ईमान रखता हूं यीशु मसीह पर, इसलिए अब मेरे लिए सब कुछ खैर है, सब ठीक है। बाकी मैं किसी बात को मानूं या ना मानूं, बाकी मैं सब कुछ गंदगी भी करता जाऊं, जिस्म के काम भी मेरी जिंदगी के अंदर हो, मैं जो मर्जी करूं। लेकिन एक आयत मुझे आती है, अजीजों, कलाम को रट लेना अच्छी बात है, मेमोराइज कर लेना अच्छी बात है, मगअप कर लेना अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करना जो है मेरे और आपके लिए वो सबसे जरूरी है। खुदा के खादम ने, मुकद्दस यूहन्ना ने याद दिलाया वाक्या कि जिस तरह मूसा के जमाने में हमारे सांप को बल्ली पर लटकाया गया था, ये सलीब है अजीजों, सलीब का निशान था अजीजों। और फिर पीतल का सांप, पीतल पीतल पीतल, ये आप अजीजों इसको भी आप देख सकते हैं। ये मुकाशफा पहला बाब है, उसमें लिखा है, मैंने एक शख्स को देखा, वो कहते हैं उस पतमस के जजीरा के अंदर यूहन्ना आरिफ ने देखा कि एक शख्स, मैंने मुड़कर उसको देखा, जिसके आंख की शोला की मानो तेज थी, जिसका चेहरा दोपहर को तपते हुए सूरज की मानद था, जिसकी रान पर कलाम खुदा लिखा हुआ था। वो सराता पा अजीज एक चोगा पहने हुए हैं, और जिसके पांव पीतल के हैं, जिसके पांव पीतल के हैं। हालेलुया। अब अजीजों, यशायाह 53 में लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ। पैगाम है एक, और सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए द पावर ऑफ गॉड, खुदा की कुदरत है। निजात पाना जो है पाएंगे तब अजीजों
हम उस सलीब के मैसेज को अपनी जिंदगी में ले लेंगे। दिल में लेना अजीजो मैसेज को। और निजात कैसे पाई जाती है? निजात का तरीकाकार क्या है? क्या सिर्फ मुंह से या कह देना कि ये सलीब पर सब कुछ हो गया है, सलीब पर यीशु मसीह ने लहू दे दिया है, मार खाई है, कोड़े खाए हैं, उसकी दाढ़ी नोची की, उसके मुंह पर थूका गया, हमारी खातिर जलील हो गया, एक हम 40 कोड़े खाए। लेकिन हमारे लिए एक मैसेज दे दिया है अजीजों। मैसेज ये है, निजात है। कैसे पाए? बिब्लिकल फॉर्मूला क्या है? हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल ये लिखते हैं कि निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। क्या एक छोटा बच्चा इकरार कर सकता है? वो तो पहले ही पाक है। पाक लोगों के बच्चे भी पाक ही होते हैं। देखो, औलाद खुदा की मिरास है। हां, उसको अजीजों चर्च के अंदर ले जाकर बरकत दिलवाइए, फादर से दिलवाइए, बिशप से दिलवाइए, किसी पोप से दिलवाइए, किसी से दिलवाइए, जिससे मर्जी दिलवाइए, वो एक बरकत है। जिस तरह से यीशु मसीह को मुकद्दस यूसुफ और मुकस्समा मरियम ने हैकल के अंदर ले गए और शमौन कायन ने उसको बरकत दी। हालेलुया। इस तरह से हमारे लिए भी जरूरी है कि एक मसीही घराना होते हुए हमें अपने बच्चों को खुदा के घर में लेके जाना चाहिए, ताकि वो खुदा का खादम बरकत दे। लेकिन रूह से भरा हुआ खादम होना चाहिए, याद रखें। अगर वो रूह से भरा नहीं होगा तो वो कौन सी बरकत देगा? बरकत तो रूह कुदस ने जो अंदर उसने देनी है, और पता नहीं क्या कह देना है। कौन सा प्रोफेटिक वर्ड उसने बोल देना है। क्या वो रट्टी रटाई बातें जैसे वो बनी इस्राएल बरकत देते उसको रट के दे दो? नहीं अजीजों, खुदा उनका पाक रूह आपके मुंह से ऐसे प्रोफेटिक वर्ड्स दे सकता है, क्योंकि आप रूह से भरे हुए हैं। रूहानी लोगों से बरकत लें, जो जिस्मानी हैं, जो रूह से खाली हैं। उनसे अजीजों वो सिवाय गोदी में उठा लेंगे और तेल लगा देंगे पकड़ के, और कहेंगे ये इसको मखसूस कर दिया गया है। कोई किसी किस्म का ज़ाहिरी निशान जो है ये मना कर दिया गया है। तो अब अजीजों, हमें क्या करना है? जब मैच्योर हो गए, जब मैं बच्चा था बच्चों की तरह बोलता था, और जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क की। कैसे तर्क करनी है अजीजों? हम मुंह से इकरार करते हैं, बोलते हैं। निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। हालेलुया। एक दो हवाले निजात के लिए अजीजों कलाम पाक में से आपके सामने रखता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल और सिलास अजीजों ये यरूशलेम के अंदर स्ट्रीट इवेंजलिज्म कर रहे हैं, और एक औरत बार बार कहती है ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह दिखाते हैं। काफी दिनों से मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को सुनता रहा। बात तो अच्छी कह रही थी कि ये जो लोग हैं ये खुदा ताला ऑलमाइटी गॉड के ये सर्वेंट है, नौकर हैं, जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। हालेलुया। पौलुस के लिए लिखा है कि मैंने तुझे कौमों के लिए, बनी इस्राएल के लिए और बादशाहों के लिए एक चुना हुआ वसीला बना लिया है, और तू जमीन के इंतहा तक निजात के लिए मेरा गवाह ठहरेगा। अब अजीजों वहां पर रुकावट आ गई। अब मुकद्दस पौलुस रसूल ने रूह की हदायत से, रूह के मसा से, रूह कुदस की 9 नेमतों से भरा हुआ ये शख्स है, जिसमें से एक है रूहों का इम्तियाज। ये पहला क्रंथियों आप 12 में पढ़ सकते हैं। रूह कुदस की 9 नेमतों में से रूहों का इम्तियाज। उसने देखा कि औरतें बातें तो अच्छी करती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी गैबदान की रूह है जिसकी वजह से वो कलाम जो मैं पहुंचाना चाहता हूं ये लोगों तक नहीं जाने देती। तो उसने बड़े गुस्से से भरकर उसको देखा और उसको झिड़का और उससे कहा चुप रहे, और वो बदरू उसमें से निकल गई। गैबदानी की बदरू, वो गैब की बातें बताती थी और कहती, जब लोग उसको उसके बाद पैसा देते थे और अपने मालकों के लिए बड़ा पैसा कमाती थी, और उसने ये काम छोड़ दिया। जब उसने ये काम छोड़ा अजीजों, तो उसके बाद उसको पकड़कर पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया तो रात को खुदा ने एक जलजला भेजा। मसीह के लिए भी लिखो जलजला आया अजीजों, और वो पत्थर लुढ़क गया। जलजले ने पत्थर को लुढ़काया है।
किसी ने नहीं कहा कि ऐ यस्सु कब्र से बाहर आ जा, मुझे जान देने का इख्तियार, उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। तुम जिंदा को मुर्दों में कहां ढूंढ रही हो? हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। रात को जल्जला आया, लोगों की हथकड़ियां खुल गई कैदियों की, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल और सिलास वहां से नहीं भागे। दरोगा कांपता और डरता हुआ, उसको पता चल गया अब तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, क्योंकि ये तो बड़े डाकू थे, बड़े चोर थे, इनको तो उन्होंने सख्ती से पहरादार लगाया गया था। अब अजीजो वो डरता हुआ, उन्होंने कहा तू मत अपने आप को नुकसान पहुंचा, हम यही बैठे हुए हैं। उसके बाद अजीजो वो कहने लगा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उसकी निजात के लिए खुदावंद उनको भेज रहा है जेल में। उस औरत को लिए भी जो कोई गैबदान की बदरूह से भरी हुई है, उसको भी खुलासी मिल गई अजीजो। और ये शख्स अजीजो लिखा है, उन्होंने कहा कि तू खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यहां तक खादम ला के छोड़ देते हैं आधा कलाम, और आगे लिखा है कि वो दरोगा उनको अपने घर में ले गया, उनके जख्म धोए और वो साथ कलाम की बातें करते रहे, उनको कलाम सिखाते रहे, खुशखबरी सुनाते रहे। हालेलुया। और उसी रात उन्होंने अपने बच्चों समेत, खानदान समेत बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा लिया है। पानी के बपतिस्मे के अंदर निजात पाई जाती है अजीजों। हाल इसके अंदर गुनाहों की माफी पाई जाती है। अगर कोई कहे तो अजीजों उसको 3 हवाले नोट कर लीजिए, लिख लें। 3 हवाले यीशु मसीह ने फरमाया है इसके लिए। मुकद्दस मत्ती 21 बाब है, मुकद्दस मरकस 11 बाब है और मुकद्दस लूका 20 बाब। इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे जवाब दो, तो मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से था, या अजीजो आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से? तीनों हवाले के अंदर आप पढ़ सकते हैं अजीजो। क्यों इस बात पर वो जोर दे रहे हैं? क्योंकि पानी के बगैर निजात नहीं है, पानी के बपतिस्मे के बगैर गुनाहों की मुआफी नहीं है। दूसरे लफ्जों में सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए यह खुदा की कुदरत है। यह कुदरत है अजीजों कि एक पुराना आदम मरता है, वो जो गुनाह का अंसर सांप के वसीले से हमारी जिंदगी के अंदर आया है, उसको हमने खुद निकालना अजीजों। सलीब पर उन्होंने पूरे जहान की कुर्बानी दे दी है उस मारूसी गुनाह से। लेकिन अब अजीजों जो गुनाह मैंने किए इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर, उस पर हमें इकरार करना होगा। तब अजीजों हमें खलासी मिलेगी। कब? तब मखलसी मिलेगी, तब रिहाई मिलेगी, तब गुनाहों से निजात मिलेगी अजीजों। ये कलाम कहता है अजीजों। इसलिए हमें कलाम पाक के मुताबिक इस कलाम पर अमल करना होगा। सलीब गले में डालने के लिए नहीं, टाई लगवाने के लिए नहीं, इसकी बालियां डालने से नहीं हमें निजात मिलेगी। जब तक उस मैसेज को मैं और आप अपने, और उसके बाद गले में नाम ही डालें, कानों में नाम भी डालें, लोगों को मत दिखाएं कि मैं तो बहुत बड़ा भगत हूं। वड्डी वड्डी सलीबें लटकाने से या अजीज सोटियों के ऊपर, डांगों के ऊपर सलीब का निशान बनाने से या ज़ाहिरी तौर पर ऐसे हाथ करने से ऐसे हमें नहीं बरकत मिलेगी जब तक मैं और आप इस कलाम पर अमल ना करें। जब तक मैं और आप इस कलाम पर अमल ना करें। मुकद्दस पौलुस ने कैसे निजात पाई थी? कैसे अजीजों? वो तो सताने वाला था कलीसिया को। आसमान से आवाज आ गई, आसमान से ऐसा नूर चमका कि अंधा हो गया 3 दिन के लिए, ना कुछ खाया ना पिया दमिश्क के चौक के अंदर। ओ 3 दिन तक अंधा हो गया। हालेलुया। ओ खुदावंद ने कि हननिया शागिर्द को कहा जा इसके लिए दुआ कर। उसने कहा मैं तो नहीं करता इसके लिए, क्योंकि ये तो बड़ा जालिम इंसान है, ये तो औरतों और बच्चों को घसीट कर मारता है। उन्होंने कहा जा, इसको मैंने चुन लिया है, अब ये बादशाहों के लिए, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए ये निजात का भी इश्तिहार देगा। हालेलुया। तो भाई उन्होंने, हननिया ने दुआ की। उन्होंने कहा भाई पौलुस उठ, देर क्यों करता है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम फरमाता है अजीजों,
यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल, अपने गुनाहों को। हालेलुया। अगर मैं और आप अपने अपने गुनाहों का चाहते हैं कि हम इसकी मुआफी पाएं, तो हमें अपनी जुबान खोलनी है। ये नहीं कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा कि सिर्फ बाप पाले निजात, या बाप पाएगा तो मां को भी मिल जाएगी, मां को भी मिल जाएगी बच्चों। ऐसा नहीं है अजीजों। हर एक को खुदा ने जुबान दी है, हर एक को मुंह दिया है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा वो निजात पाएगा। मुकद्दस मरकस 16:16 में जो भी। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनना है। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनिए और अपनी जुबान से उसका इकरार करते हुए उसके कलाम के मुताबिक अपनी बरकत को लें। जो पहली कलीसिया बनी तो वो कैसे बनी थी अजीजों? फर्स्ट चर्च जो मुकद्दस पतरस के वसीले से बना है, जिसका जिक्र अमाल चैप्टर 2 उसके वर्सेस अजीजों 38 में लिखा, 38 टू एंड ऑफ द चैप्टर पढ़िए। क्या खुदावंद के खादिम ने उन 3000 का फिदिया नहीं दिया गया था? उनके लिए कुर्बान नहीं हुआ था? क्या उनके लिए खून नहीं बहाया गया था? उनके लिए भी खून बहाया गया था। हालेलुया। उसने जहान से ऐसा प्यार किया है। देखो ये खुदा बाप बर्रा, ये खुद ही बर्राबर, उसको तशबीहन कहते हैं, वो जहान का गुनाह उठा ले गया। तो क्या 3000 के नहीं थे उठाए गए? अजीजों कलाम पाक में लिखा, उन्होंने कहा तौबा करो और तुम इसे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस नाम में पाओगे। हालेलुया। रूह कुदस नाम में पाओगे। ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। वो इंतजार में है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तेरे लिए फिदा हो गया, मैं कुर्बान हो गया हूं सलीब पर, मैंने अपना लहू दिया है, मैंने तुझे खरीदा है, अब तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। मेरी हुक्म को मान, मेरी बात को मान। मुझे तेरी दया की जरूरत नहीं, मुझे तेरे चंदों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे दिल की जरूरत है। मुझे अपना दिल दे ताकि इसके अंदर में आकर रह सकूं, बसेरा कर सकूं, रह सकूं। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है। वो तो इसको बेवकूफी समझते हैं। वो कहते निजात मिल चुकी है, ये अंदर की बात है, बाहर वालों के लिए नहीं है। वो तो उसके कफारे को माने या ना माने, एक वक्त आएगा जब तक वो भी नहीं इस बात को नहीं मानेंगे, निजात उनको भी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो दो तरह के तराजू नहीं रखता कि अपनों के लिए कोई और तराजू हो और दूसरों के लिए कोई और तराजू हो। एक ही तरीका है सबके लिए। अब कोई हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। यह हकीमों को इसकी समझ नहीं है। हकीम है, बड़े बड़े पादरी हैं, बड़े बड़े बिशप हैं। अजीजों, हमारे भाई ने ईस्टर के दिन एक और शहर में हम गए, उसने एक मैसेज दिया और इतना खूबसूरत मैसेज उसने दी, इतना प्यारा मैसेज उसने दिया। उसने कहा ये प्रोसेस है कि ये निजात का अमल शुरू हो जाता है। खुदा ऐसा ऐसा हमें काटता जाता है, तराशता जाता है और आगे बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। ये तरीका है। तौबा करें, तौबा से शुरू होता है और उसके बाद हमें अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना। और फिर अजीजों, उसके बाद रूह कुदस हमें इनाम में मिलेगा। रूह कुदस हमें घेर के रहा है लेकिन मिलेगा। फिर उन्हें कहा कि तुमने हर रोज जमा होना है, रोटी तोड़नी है, दुआ करनी है और रसूलों से तालीम पाते रहना है। जीजो, तालीम जरूरी है। इस किताब मुकद्दस को इतना ही नहीं, उन सब बातों पर अमल करना है जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उठ भाई पालूस, देर क्यों करता है? यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल। पाक रूह का बपतिस्मा इसको पहले हुआ है। हालेलुया। जब इसको अंधा किया गया, जब इस पर नूर चमका है, जैसे मुकद्दस मूसा, हालेलुया, उसको उसने झाड़ी के अंदर आग देखी थी। हालेलुया। और उसको कहा कि अपने जूते उतार दे। यीशु मसीह ने पीतल के जूते पहने हुए हैं। ये रूह कुद्दस के जूते अब हमारे पास है। ये कोई जहरी निशानी अजीजों, और इसके वसीले से हालेलुया हमारी सारी गंदगी, सारे गुनाह जो हमने खुद किए थे,
हालेलुया, वो सब अजीजों खत्म हो जाते हैं जो दुनिया नहीं मुआफ करती, वो मेरा यीशु मुआफ करता है। हर चंद मेरे गुनाह रुगवानी थे, किरमजी थे, वो बर्फ की मानो सफेद हो गए। हालेलुया, जब इस कलाम पर अमल किया है, अगर किया है तो यकीन रखिए कि इस गुनाह का जर्रा भी नहीं आपकी जिंदगी में नहीं रह सकता। हैकल पाक हो जाएगी, मश्क पाक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इसको अधूरी ना छोड़े। इसके लिए रूल कुदस ले लो, रूल कुदस लो। जब तक तुम्हें रूल कुदस ना मिले, जब तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, जब तक शहर से बाहर ना जाना, इस घर से बाहर ना निकलना, इस शहर को ना छोड़ना। ऐ ईमानदार प्यारे बच्चों, बेटो बेचियो, जब तक तुम्हें रूल कुदस ना मिले, उसका पीछा करते रहना। उससे कहना मैं भूखी और प्यासी हूं, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मस्सा चाहिए, मुझे रूल कुदस चाहिए, रूल कुदस की बरकत चाहिए। मैं तेरा बनना चाहता हूं, तेरे जैसा बनकर जमीन पर रहना चाहता हूं, ताकि मैं दोबारा गंदगी की तरफ ना जाऊं, नापाकी की तरफ ना जाऊं। मेरी आंखें पाक रहें, मेरी सोचें पाक रहें, मेरा दिल पाक रहे, मैं पाक रहूं, पाक रहूं, पाक रहूं। और तेरा पाक रू मुझे कुव्वत देगा, तेरा पाक रू मुझे कुव्वत देगा, तेरा पाक रू मेरे पांव को भगा कर ले जाएगा। अगर गंदगी की तरफ जाना चाहूं, हाथ अगर चोरी की तरफ जाएंगे, पाक रू रोक लेगा। आंखें अगर किसी बुरी नीयत से किसी को देखने की कोशिश करेंगे और गंदा ख्याल आएगा, उसको भी आंखों को रोक देगा खुदावंद। ओ हालेलुया, वो ऐसा कंट्रोल करना जानता है। जुबान अगर लतर लतर करना चाहती है, गाली देना चाहती है, बकवास करना चाहती है, तो इसको रोकेगा। ऐ ईमानदार, ये तेरा काम नहीं है, क्योंकि तू अब निजात याफ्ता है, तू अब धुल चुका है, तू पाक हो चुका है, तू रास्तबाज बन चुका है, तू मसीह की सूरत और शबीह बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अजीजों, अरुल कुदस, अरुल कुदस, अरुल कुदस सबके लिए अजीजों, सबके लिए अजीजों। जो वो नहीं देखता ये कैथोलिक है, ये प्रोटेस्टेंट है, ये पेंटिकॉस्टल है, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये सल्वेशन, लेकिन वो भूखी प्यासी जान को सेव करता है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। आपकी निजात का अमल रूल कुदस के बगैर अधूरा है। रूल कुदस के बगैर आप नीम गर्म हो सकते हैं या सर्द कलीसिया हो सकते हैं। नीम गर्म और सर्द कलीसिया की अदालत होगी, नीम गर्म और सर्द कलीसिया की अदालत होगी। और अगर आप पाक मसा में होंगे, पाक रूह कुदस के वसीले से जी रहे होंगे, पाक रूह कुदस की रहनुमाई में होंगे, तो अजीज हालेलुया, आप अदालत करेंगे बर्रक के साथ तख्त पर बैठकर। कितना बड़ा एजाज है। ओ सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अगर आपने निजात नहीं पाई तो बाइबल के मुताबिक हम बेवकूफ हैं। हकीकी निजात, प्रैक्टिकल निजात, हालेलुया, जिसका अभी जिक्र किया है आपके सामने, इस तरह से पा चुके हैं तो वी आर ब्लेस्ड, हम मुबारक हैं। अगर नहीं पाए तो आज खुदा उनका पाक रूह एक बार फिर फरमाता है, हालेलुया, हालेलुया, तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा। गौर से सुनिए कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और मुर्दे खुदा की इबादत नहीं करते। मुर्दों का हिस्सा आग और गंध की झील है। इसलिए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ और गुनाह ना करो। ये रूह कुदस ऐसा करने का फजल देगा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके जिंदा कलाम के लिए। और आखिर में अजीजों, उसी आयत को मैं आपके सामने गाऊंगा और आज की बरकत को बंद करूंगा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा बाप यीशु मसीह की कुदरत है, कुदरत है, कुदरत है। पुराना आदम मर गया, पुराना इमैनुअल मर गया, जो गंदगी में रहता था, जिसकी आंखों में गंदगी, जिसके दिल में नापाकी, जिसके पांव गंदे, सराता पास गुनाह में बसर जिंदगी बसर करने वाला था। लेकिन आज खुदावंद के फजल से, उसके फजल से, उसके कलाम के वसीले से हालेलुया उसने पाक कर दिया, उसने धो दिया। ओ वही पाखरू आपको चाहिए, वही पाखरू। इसी मस्सा में चलेंगे तो बचे रहेंगे, गुनाहों से बचे रहें। इसके वसीले के बगैर और कुछ नहीं हो सकता। जितने मर्जी जबूर रट लें, लोग जबूर पढ़ी जाते ने, बड़े बड़े पढ़े, अच्छी बात है,
پڑھنا اچھی بات ہے، مذہبی نہیں روحانی بنے، مذہبی نہیں روحانی بنے، مذہبی جنونی نہیں روحانی بنے۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ آمین آمین، ہاللیلویہ آمین ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ عزیزو، یہ کلام کی برکت یہ اس کے روح نے میرے دماغ میں ڈالی ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ اس روٹی کو کھایا ہے۔ مجھے سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے، مجھے سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور ابلیس کبھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، کیونکہ داؤد جانتا تھا کہ خداوند متواتر گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ اس لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے۔ اور فیس بک فیملی کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے، یہ کمزور ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، خداوند کا پاک روح آپ کو بیماریوں سے، آپ کو دکھوں سے، آپ کو مصیبتوں سے آزاد کرے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ لیٹ us be a practical Christian۔ آؤ ایک عملی مسیحی بنے، اس کلام پر عمل کیجئے۔ خداوند کا پاک روح آپ کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین 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 ہاللیلویہ۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو یہوہ۔